Hello students, let's continue with GST. In the previous video we completed till question number 13. In the new book it was 12 and I gave you one sum for homework. Now let's do question number 15. In the new book it is question number 10. And before starting this, I want to make one concept clear. I can see there is confusion among the students that, for example, let's say a shopkeeper there is a shopkeeper who bought an article for rupees 8,000 and sold it to the customer at 10,000. This is just a random example I am giving you. This is not the 15th sum. Okay, this is not the 15th sum. Just one concept I want to make is clear. So this is the case. Shopkeeper bought the article for rupees 8,000 and sold it for rupees 10,000 to the customer. Now if they ask you, find the GST deposited by shopkeeper to the government. So GST deposited by the shopkeeper to the government. I have told you how to find this. This will be, let's say the GST is 5%. Okay, so this answer will be 5% of the profit made by the shopkeeper. Okay, and how much profit has the shopkeeper made? 8,000 to 10,000. कितना profit किया है? Shopkeeper has made a profit of 2,000. Okay, so when you cancel this, you will get the answer as 100. ये क्या है? This is the GST deposited by the shopkeeper to the government. Okay, let's say this was one part of the question. Now in the second part, they ask you to find the price paid by the shopkeeper. Price paid by the shopkeeper. So price paid का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? Price paid is the selling price plus the GST on that price. Okay, so ये कैसे फाइंड करना है? सेल प्राइस. सो शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस क्या थी? नॉट सेलिंग प्राइस, दिस इज सेल प्राइस. मीन्स शॉपकीपर ने कितने में खरीदा? प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर. प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इज 8,000 प्लस GST. ओके, सो दिस मैंने हमेशा आपको बताया है दैट this is never the answer. If shopkeeper is buying something, it will be 8,000 plus GST. If customer is buying something, it is 10,000 plus GST. Okay, so यहाँ पे आएगा shop sale price that is 8,000 plus the GST. Now what this GST? कैसे calculate करें ये GST? ये GST है 5% of this price 8,000. जब प्राइस पेड में ये जो GST लिखा है ना, ये GST क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द टैक्स ऑन दिस सेल प्राइस. ओके, सो GST अगर 5% है तो 5% ऑफ दिस सेल प्राइस. समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स. दे थिंक दैट द GST, दिस इज द GST ऑफ शॉपकीपर, सो दिस इज द GST. दे राइट 100 रुपीज हियर. दैट इज रॉन्ग. ये 100 रुपीज जो है ना, ठीक है, ये शॉपकीपर के पास से गवर्नमेंट को गया हुआ GST है. ठीक है, बट ये जो आप फाइंड कर रहे हो प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, दैट इज सेल प्राइस प्लस GST. दिस प्राइस, दिस अमाउंट द शॉपकीपर इज गोइंग टू गिव इट टू द, लेट्स से, मैन्युफैक्चरर. 8,000 प्लस GST जो है वो मैन्युफैक्चरर को पे करने वाला है. ठीक है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट का लेन देन नहीं होता. सो जब आप प्राइस पेड फाइंड कर रहे हो किसी का भी, ठीक है, शॉपकीपर हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, कस्टमर हो, सो इट विल ऑलवेज बी सेल प्राइस प्लस GST, and that GST is on this sale price only. Okay, so 8,000 plus 5% of this 8,000. Okay, and then whatever answer you get, so 8,000 plus, let's say, 400. So your answer is 8,400. Okay, इस फॉर्मूला में प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर में जो GST की जगह पे ये वाला GST मत यूज करना. ये जो मिला है ना 100 रुपीज, इसको मत यूज करना, तो वो गलत हो जाएगा. ओके, ये जो प्रॉफिट पे So I just wanted to make this thing clear that
when they are asking you price paid by any person, that will be the sale price plus 5% or 10% on this sale price only. Okay, so this GST you have to calculate here only, that is 5% of this price. Okay, do not use any other value. ये प्रॉफिट पे किया हुआ जो प्राइस है 100 रुपीज़, दिस इज़ अ डिफरेंट GST जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है. ठीक है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट होता है GST फाइंड करने का. सो इस वैल्यू को कहीं यूज़ मत करना. ओके, लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 15. In new book it is question number 10. The question says the shopkeeper bought a TV at a discount of 20% on the list price of 25,000. So the list price means mark price 25,000. And shopkeeper ने कितने में buy किया? Shopkeeper bought at a discount of 20%. 20% discount means CP of shopkeeper is 20% discount. मैंने बताया था if there is 20% discount है means 80% फाइंड करो. ठीक है, फाइंड 80% of 25,000. So 250 into 8, that is 2,000. $20,000. सो शॉपकीपर ने कितने में बाय किया है? 20,000. ठीक है, मैंने बताया था कि अगर 20% डिस्काउंट है तो दो स्टेप करने से अच्छा पहले 20% फाइंड करो फिर उसे माइनस करो, उससे अच्छा डायरेक्टली फाइंड 80% ऑफ द मार्क प्राइस. सो दिस इज योर आंसर. ओके, देन दे से दैट द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लिस्ट प्राइस टू द कस्टमर. सो कस्टमर को कितने में मिला? 10% discount on the mark price. Okay, so CP of customer is 10% discount means find 90% of the mark price. So 25 into 9, that is 2250. Okay, this multiplier is 250 with 90. You will get 22500. ओके, सो कस्टमर ने कितने में बाय किया? 22500. ओके, नेक्स्ट द GST is 28%. The rate of GST is 28%. Now what do we have to find? We have to find the amount paid by the customer for the TV. Amount paid by the customer means price paid by the customer. First part, price paid by the customer क्या होगा? सेल प्राइस प्लस GST ऑन दिस सेल प्राइस. ओके, सो कस्टमर ने कितने में बाय किया? 22500. सो 22500 प्लस 28% इज द रेट. सो 28% ऑफ 22500. Okay, so this will be 22500 plus 00, cancel 225 into 28, that is 6300. Okay, so this answer will become 2880. Price paid by the customer. Next, in the second part, they are asking us to find the GST to be paid by the shopkeeper to the government. So shopkeeper government को कितना GST पे करेगा? Shopkeeper is a middleman, so he will pay the GST only on the profit. So shopkeeper का profit क्या है? 20,000 में लिया and 22,500 में सेल कर दिया. ठीक है, so see this, profit of shopkeeper. Profit of shopkeeper is 22,500 minus 20,000, that is 2,500. ओके, शॉपकीपर ने कितने में लिया?
25 शॉपकीपर का प्रॉफिट कितना हुआ 2500. सो द GST पेड by the shopkeeper to the government. Okay, this GST is 28% of the profit. So this is 0 cancel. 25 into 28. This will give you 700. अंडरस्टूड. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस पे बाय कर रहे हैं, इसको चेन को बनाना इंपॉर्टेंट है. वंस यू मेक दिस चेन यू कैन इजीली फाइंड द प्रॉफिट, यू कैन इजीली फाइंड द प्राइस पेड बाय द कस्टमर और एनीथिंग एल्स. ओके, सो कॉपी दिस पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. In the new book, it is question number 11. A shopkeeper buys an article at a discount of 20% on the mark price of 2000. So mark price is 2000. Shopkeeper buys at a discount of 20%. Shopkeeper ने 20% discount में buy किया है. Means cost price of shopkeeper is 20% डिस्काउंट मीन्स मार्क प्राइस का 80% फाइंड करो. ओके, डिस्काउंट को डायरेक्टली करना चाहिए. 8 2 16, सो दैट इज 1600. सो शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल्स फॉर 1600. द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस टू द कस्टमर. सो कस्टमर को वो 12% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, ऑन द मार्क प्राइस. सो मीन्स cost price of customer is 12% डिस्काउंट देना मीन्स 88% फाइंड करो ऑफ 2000. ठीक है, 12% डिस्काउंट है. 12% मतलब 100 में से 12 माइनस करोगे तो यू विल गेट 88% विल रिमेन. ओके, सो 88 into 20 you will get 1760. सो मीन्स शॉपकीपर ने सेल किया है कस्टमर को at 1760. Okay, then if the GST charged is 5%, so the rate of GST is 5%. Let's see what are the questions. First, they have asked us to find the GST collected from the shopkeeper to the government. Means shopkeeper ने कितना GST pay किया to the government. So GST collected means paid by shopkeeper to the government. Okay, so ये shopkeeper middleman है. Again he will pay the GST only on the to the government. He will pay the GST only on the profit. Total GST उसके profit पे calculate होगा. So let's find his profit first. So profit of shopkeeper is he bought the article in 1600 and sold it in 1760. Means profit कितना होगा 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. करेक्ट. सो GST by shopkeeper to government is rate is 5%. 5% of 160. This will be 8 rupees. You are getting the GST as 8 rupees. Okay, next. The amount paid by the customer for the article. Amount paid by the customer means price paid. Okay. Amount paid by the customer. Amount paid मतलब price paid. So price paid कैसे निकालते हैं? ठीक है, price paid is the sale price plus the GST on the sale price.
ओके, सो कस्टमर ने कितने में बाय किया है? 1760. सो दिस इज 1760 प्लस 5% ऑफ 1760. Okay, when you will solve this, you will get the answer as 1848. Your answer will be 1848. Now in the new book there is one more question number 3 also. ठीक है, so जिनके पास पुरानी बुक है they can add this question. It says amount of tax received, and this is an important question, amount of tax received by the central government. उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा? गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करता है? जितना टैक्स, व्हाट इज द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट और टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट? टोटल जीएसटी, दैट इज द जीएसटी पेड बाय द कस्टमर. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट. जो जीएसटी होता है दैट जीएसटी इज डिवाइडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट. ओके, सो हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस टैक्स इज नथिंग बट द जीएसटी दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय गवर्नमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कस्टमर जितना जीएसटी पे करता है वही टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को मिलता है. ठीक है, तो कस्टमर का वैल्यू कितना है? कस्टमर वैल्यू इज, सेल प्राइस इज 1760. ओके, सो आई विल फाइंड 5% of 1760. Okay, when you will solve this you will get the answer as 88. Okay, this 88 is you get 88 rupees. 88 rupees is the tax received by the government. ठीक है, और this is the total tax received by the government. बट जो जीएसटी कलेक्ट होता है इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इक्वली. तो यहाँ पे पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? तो टोटल गवर्नमेंट को 88 रुपीज़ मिलेगा, जिस 88 रुपीज़ में से हाफ विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दैट विल बी 44 रुपीज़. तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को 44 रुपीज़ मिलेंगे. ओके, समझ रहा है कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है? ये न्यू क्वेश्चन ऐड किया है उन्होंने इन द न्यू बुक. सो उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी बाय गवर्नमेंट. बाय गवर्नमेंट बोलते तो 88 आंसर होता. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था दैट जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट मीन्स जो कस्टमर जीएसटी पे करता है वो होता है टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. सो कस्टमर ने कितना जीएसटी पे किया? 88. बट उस 88 में से हाफ विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हाफ विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो अगर यहाँ पे ऐसा पूछते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट तो भी आंसर 44 होता, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट इज गेटिंग 44 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज गेटिंग 44. सो टोटल द गवर्नमेंट इज गेटिंग 88 रुपीज एज टैक्स. ओके, नेक्स्ट. Next, question number 17. In the new book, it is question number 13. Question is the same. It says, the list price of a handbag is 3000. List price means mark price is 3000. Distributor sells to the trader at a discount of 20%. So distributor sells it to the trader at a discount of 20%. So trader को 20% डिस्काउंट मिल रहा है. So CP for trader
will be 20% discount मिला means 80%. He paid 80% of 3000. What is 80% of 3000? It is 2400. So trader ने कितने में लिया? 2400. Okay. Trader sells it to the customer at list price. So trader ने कस्टमर को कितने में बेचा? At the list price. मतलब यही प्राइस. So that is 3000. Okay. The GST charged is 12%. Very simple sum. Now the question is the GST deposited by the trader with the government. So trader ने कितना GST पे किया? Trader ने कितना GST पे किया? So that is trader ने कितना profit किया? First trader's profit. Trader's profit is 3000 में बेचा 2400 में लिया. That means 3000 minus 2400, that is 600 rupees. Okay, and then GST paid by trader to the government, that is 12% of profit. What is the profit? 600 rupees. So this is cancelled. 12 6 are 72. ओके. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. जो मैंने आज स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था पॉइंट, वो इस सेकेंड क्वेश्चन में वापस आया है. सो दे आर आस्किंग यू द प्राइस पेड बाय द ट्रेडर टू द डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. सो द प्राइस पेड बाय द ट्रेडर, क्या पूछा है? प्राइस पेड बाय द ट्रेडर. ट्रेडर ने कितना प्राइस पे किया होगा? 2400 प्लस टैक्स प्लस GST. ओके, सो दैट इज सेल प्राइस प्लस GST. सो कितना है सेल प्राइस? 2400 प्लस GST. ओके, सो ये GST कौन सा है? दिस इज 12%. जो प्राइस पेड के वक्त यहाँ पे क्या आता है? टैक्स. सेल प्राइस प्लस GST. दिस GST इज ऑन द सेल प्राइस ओनली. Okay, so GST is 12% on the sale price, that is 2400. So you will get 2400 plus 0 cancel. 24 into 12 is 288. So your answer will be 2688. Okay, यहाँ पे 72 मत लिख देना गलती से. आपको ऐसा लगेगा GST paid by trader is 72 rupees, so I will write here 72 rupees. No, ये दिस इज प्राइस पेड बाय ट्रेडर टू द डिस्ट्रीब्यूटर. ये जो पैसा जाने वाला है ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने वाला है, गवर्नमेंट के पास नहीं. सो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा प्राइस पेड में जो GST आता है वॉट एवर 12%, इट इज़ ऑन द सेल प्राइस. सो इस सेल प्राइस पे आपको GST निकालना है 12% ऑफ दिस सेल प्राइस, एंड वो आएगा 288, एंड देन वो आगे यूज़ होगा. ठीक है. सो दिस GST इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस. ओके, और ये वाला अलग है. दिस इज द GST पेड बाय द ट्रेडर टू द गवर्नमेंट. ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट हम निकालते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑन द प्रॉफिट. ये ट्रेडर ने प्रॉफिट पे जो दिया था, एंड ये जो है वो ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है. ठीक है. वो किस पे देगा? जितना प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे कोट किया है. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू हैव प्राइस पेड बाय द ट्रेडर, सेल प्राइस प्लस GST, दैट GST इज ऑन द सेल प्राइस. ओके, सो 12% ऑफ द सेल प्राइस. Now, question number 18. In the new book, it is 14. Now, mark this sum as important. This is a different sum. What does this sum say? A retailer sells a block, granite block, for rupees 40,000, and the GST charged is 12%. So, retailer ने सेल किया ग्रेनाइट ब्लॉक. ठीक है. कितने में सेल किया?
40,000, GST charged is 12%. If the retailer pays the GST of 960 rupees, so retailer ने कितने में लिया है वो नहीं पता, बट retailer ने कितना GST पे किया, he pays the GST of 960 rupees. ओके, वो दिया है हमें, GST ऑलरेडी दे दिया है. Find the price paid by the retailer of the article inclusive of tax. So what we have to find, price paid by retailer inclusive of tax. So price paid by retailer. Now first we don't know उसने किस प्राइस पे ख़रीदा था, तो पहले तो वो प्राइस ढूंढते हैं. कैसे ढूंढेंगे? सी, लेट्स से दैट प्राइस इज़ एक्स. जो प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे होता है ना प्राइस, ट्रेडर ने बाय किया इतने में, सेल किया इतने में, सो दैट इज़ द प्राइस. ये प्राइस हमें नहीं पता, सो लेट दैट प्राइस बी एक्स. ओके, सो retailer is a middleman, he is buying at some price and selling at some price. Okay, so he is a middleman. तो मिडलमैन हमेशा टैक्स किस पे करता है? प्रॉफिट पे. सो व्हाट इज रिटेलर्स प्रॉफिट? रिटेलर का प्रॉफिट क्या है? 40,000 में सेल किया और एक्स में बाय किया. सो व्हाट इज द प्रॉफिट? 40,000 माइनस एक्स. करेक्ट, रिटेलर्स प्रॉफिट. नाउ GST paid by the retailer to the government. What is the GST paid by the retailer to the government? It is 12% of the profit. ठीक है, ऐसे ही होता है. अब ये GST paid by retailer to the government ये दिया हुआ है, GST ऑलरेडी दिया हुआ है 960 रुपीज़ है. सो यहाँ पे आएगा 960 रुपीज़. ओके, 12% ऑफ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 40,000 माइनस एक्स. Correct. So now cross multiply this 10, this will go here into 100 और ये 12 नीचे आ जाएगा अपॉन 12 इक्वल्स 40,000 माइनस एक्स. सो 12 वन जा 12 एट जा, सो दिस विल बी 8,000 इक्वल्स 40,000 माइनस x. So what will happen? Shift this x here and this 8,000 there. So 40,000 minus 8,000, that is 32,000. So x क्या मिला? 32,000. That means ये जो प्राइस थी यहाँ पे, that was 32,000. Okay, retailer. Now what we have to find? We have to find the price paid by the retailer inclusive of tax. मैंने आपको बताया है हमेशा that जो भी प्राइस यहाँ लिखी हुई होती है, यहाँ की जो प्राइस मिलती है वो फाइनल प्राइस नहीं होती, उस पर GST ऐड होता है. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द प्राइस paid by the retailer, price paid by the retailer inclusive of tax. प्राइस पेड इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ही होता है. क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे ना करे, इस बार किया था उन्होंने प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. अगर ये नहीं भी लिखा तो भी इट इज़ ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. ओके, सो ये क्या होता है? दैट इज सेल प्राइस प्लस GST ऑन सेल प्राइस. ओके, सो रिटेलर ने कितना पे किया है? रिटेलर ने 32,000 प्लस 12% of 32,000. Okay, so 0 0 cancel. Multiply the 12 into 320. When you multiply this, you will get 3840. Okay, 32,000 plus 3840, that is 35840. This is your answer.
First copy this part. I hope you have understood. In the question GST ऑलरेडी दिया हुआ था और ये वाला प्राइस नहीं दिया था, तो ये प्राइस हमने x लिया और हमने x फाइंड किया. वी गॉट द आंसर एज 32,000. So this is 32,000 and the price paid by the retailer will be this price plus GST on this. Okay, so वो हमने GST फाइंड किया. Question number 19. Same question. The mark price of the clock is 4,000. So the mark price of the clock is 4,000. This is in new book, it is question number 15. Mark price of the clock is 4,000. Shopkeeper sells it at mark price. So एक shopkeeper है, उसने कस्टमर को सेल किया एट मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पे सेल किया मतलब 4,000 पे सेल किया. ठीक है. If the rate of GST at every stage is 18%, so GST is 18%, and the GST paid by the shopkeeper is 288 rupees to the government. So GST shopkeeper ने कितना पे किया? 288 rupees. ये दिया हुआ है. What is the price inclusive of tax did the shopkeeper buy it from the wholesaler? So shopkeeper ने किस प्राइस पे बाई किया है इंक्लूडिंग टैक्स, वो हमें पूछा है. सेम सम, सेम एज दिस सम. तो क्या करेंगे? पहले तो शॉपकीपर इज अ मिडल मैन. सो व्हाट इज द शॉपकीपर्स प्रॉफिट? Profit will be 4,000 minus x. Correct? Now the GST paid by shopkeeper will be 18% of his profit. Okay, so what is the GST paid by the shopkeeper? It is already given as 288. So 288 equals 18% of 4,000 minus x, because profit is 4,000 minus x. Now you have to solve this. Cross multiply 288 into 1000 upon 18 equals 4,000 minus x. Now divide 288 by 18, you will get 16. 18 ones are 18, 16s are. So this is 1600. Now the 1600 will shift here. So x is 4,000 minus 1600, that is 2,400. Okay. Now this is the price at which shopkeeper has taken the article from wholesaler, but this price they have told us to find the price paid by the shopkeeper inclusive tax. I have told you, ये तो हमें क्या मिला? ये मिला. This is 2,400. ठीक है, but this is not the answer. This is never the answer. ये तो सिर्फ प्राइस है जो होलसेलर ने बताया था, कोट किया था 2,400. शॉपकीपर जब पे करेगा तो इट विल बी 2,400 प्लस GST ऑन 2,400. ओके, सो प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इज सेल प्राइस प्लस GST, that is 2,400 plus 18% of 2,400. So when you find this 18 into 24, it is 432, and this will become 2,832. Sorry, your final answer will be 2,832.
same sum as the previous one. Now the 20th and the 21st sum, question number 20 and question number 21. ठीक है, ओल्ड बुक में जो है दे आर वेरी इजी, सो आई वॉन्ट यू टू डू इट एज होमवर्क. ओके, न्यू बुक वालों के अंदर ये सब नहीं है, बट दीज आर वेरी इजी. ओके, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो मैं चाहिए तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अ मैन्युफैक्चरर सेल्स द वाटर फिल्टर टू अ होलसेलर एट 8500. सो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया 8500 में. ठीक है, होलसेलर सेल्स इट टू द ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 700. सो होलसेलर ने ट्रेडर को सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 700, मीन्स उसने सेल किया होगा 9200 में, प्रॉफिट ऑफ 700. देन ट्रेडर सेल्स इट टू द कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200. उसने 1200 प्रॉफिट पे सेल किया, मीन्स 10,200 10,400 रुपये में. ठीक है, ये हो गई वो चेन. और अब पूछा है अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड बाय द होलसेलर. ये दोनों पूछा है. तो मैन्युफैक्चरर का GST पूछा है तो 85,000 पे GST कैलकुलेट करना. होलसेलर का पूछा है तो होलसेलर इज अ मिडल मैन, तो जो प्रॉफिट है 700 उस पे GST फाइंड करना. ठीक है. सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड प्राइस पेड बाय द कस्टमर. व्हाट विल बी द प्राइस पेड बाय द कस्टमर? 10,400 plus GST on 10,400. Okay, so solve this question number 20 and 21, those who have the old book, and check your answer behind. Okay, and those who have the new book, they can also check these questions on the group. I have sent the pictures. You can check these two questions and solve it. It will help you. It will increase your practice. Okay, that's it for today. In the next video we'll continue with the next part of the chapter.